Yes student, today we are just going to start our 3.7 exercise, that is the optional exercise, but we will do it. Okay, what is the first statement? The age of the two friends Ani and Biju differ by the 3 years. Okay, their age difference is 3 years. Firstly, let me consider their present age. Let the Ani's age, that is x years, and the Biju age, that is y years. Ani and Biju age differences, that is 3 years. This is the first equation. Their difference is 3 years. Ani father's dharam, it means dharam's age is के लिए there is equal symbol, the twice as the Ani, twice 2 times of Ani. Ani is x, and the Biju age is there is equal symbol twice the age of Kathy. अभी तक हमने स्टडी नहीं किया कैथी के बारे में. Then we will write here the Kathy age. Kathy's age. Okay, how you will find Dharam age is 2x, and what is the Biju age? That is y. It means y is equal to 2 into Kathy x, Kathy's age. And how you will find the Kathy age? The Kathy age, 2 multiply on the right, going on the left hand side, it's become y by 2. So now this is the Dharam age and this is the Kathy age. Now what is the state? The age of the Kathy and Dharam, age of the Kathy and the Dharam differs by 2x, matlab their difference is 30. Okay, solve these two equations and get the actual age of Ani and Biju. Come to the question number 2. One say, give me 100 rupees. A person is saying to another person, give me 100 rupees, then I shall be, मैं हो जाऊंगा, that the twice you have. जब तुम्हारे पास जितने रुपए उसका ट्वाइस हो जाऊंगा. अदर रिप्लाइज, दूसरा रिप्लाई करता है, इफ यू गिव मी द 10 रुपीज. सेकेंड पर्सनैलिटी मुझसे बात कर रही है कि अगर आप मुझे 10 रुपीज दे दो, देन आई विल हैव, ही इज सेइंग दैट आई विल हैव द 6 टाइम्स एज योर्स. तो मेरे पास भी तुम्हारी पैसे के 6 गुना हो जाएंगे. टेल मी द अमाउंट ऑफ देयर्स. लेट, मैंने कंसीडर किया, लेट द अमाउंट ऑफ first person and the other person, amount of first person is x rupees and the amount of second person is y rupees, that is in rupees. Okay, so वो कह रहा है give me the 100 rupees. फर्स्ट पर्सन कह रहा है सेकंड को give me the 100 rupees. इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के 100 रुपीज बढ़ गए. अगर वो 100 रुपीज को दे देता है तो इसके तो 100 बढ़ गए, लेकिन उसके क्या हो गए, कम हो गए. ठीक है, give me the 100 rupees, then I will be twice of yours. ठीक है, it means x plus 100 is equal to 2 times of y minus 100. Multiply 2y minus 200. So equation form x minus 2y plus 300 equal to 0. So this one is your first equation. Now what is the another system? Another statement, other reply, दूसरा कह रहा है you give me the 10 rupees. अगर वो इसको 10 rupees दे दे, x वाला इसको 10 rupees दे दे, then it's become, इसके 10 rupees बढ़ गए लेकिन उसके कम हो गए, that is x minus 10. ओके, अगर उसके कम हो गए इसके बढ़ गए, तो वो कह रहा है other is saying that I shall be 6 times. वो कह रहा है that y plus 10 is saying that I will be 6 times of yours. It means x minus 10 के 6 गुना हो जाऊंगा. So multiply with x plus 10 is equal to 6x minus 60. So the equation will be 6x minus y minus 70 equal to 0. So this is your second equation. Solve these two equations and get your answer. Come to the third question. A train covered by what is the next one? Yes,
ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है एक डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इस मीन्स उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर रेज हो जाए, बढ़ जाए, देन इट वुड टेक द 2 hours लेस टाइम देन द शेड्यूल टाइम। अगर उसकी स्पीड नॉर्मल है और जितना भी डिस्टेंस है नॉर्मल डिस्टेंस है, अगर उसमें उसको जितना टाइम लगता है, अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर रेज कर दिया जाए तो उसका जो टाइम आएगा वो आपका कम हो जाएगा 2 hours। और अगर ट्रेन स्लो हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर तो उसका 3 hours का टाइम शेड्यूल टाइम से बढ़ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब इन दिस क्वेश्चन वी डोंट नो अबाउट द स्पीड एंड नॉर्मल स्पीड एंड द डिस्टेंस, तो हमें दोनों चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल स्पीड कह सकते हैं हम, दैट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट इज द x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन covered by the train actually that is y kilometer per hour. Our question y kilometer, distance is always in meter or kilometer, so y kilometer is the distance and question demands only about the distance. Question में भी distance पूछा गया, then you have to find only y. Okay, so what is the question? If the train will become 10 kilometer per hour faster, this is the normal speed, और अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए then the new speed, आपकी नई स्पीड क्या होगी? अगर x किलोमीटर बढ़ा लिया तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये स्पीड, ये डिस्टेंस से हमारा टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस। इट मीन स्पीड इज x एंड डिस्टेंस इज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो द टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। So what is the distance? Distance is by x. So this is the normal time, schedule time. But अगर आप स्पीड बढ़ा दिए तो डिस्टेंस तो दैट इज द सेम y किलोमीटर। अब नया जो टाइम है, टाइम डिफरेंट होगा। स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस है डिस्टेंस कम नहीं होता, बट टाइम पे इफेक्ट पड़ता है, तो टाइम विल बी डिफरेंट। सो हमारा जो फॉर्मूला है वो वही होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज y बाय x प्लस 10। ओके, अब आप बताइए अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम ये कम होगा या ये कम होगा? स्पीड बढ़ा दी तो ये टाइम कम होगा, और टाइम का डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है, कितना है? दैट इज 2 hours। तो इस ये टाइम हमारा ज़्यादा होगा, तो इस ज़्यादा वाले टाइम में से हमने कम टाइम कर दिया कम। ये टाइम है टाइम 1 एंड ये टाइम 2, T1 में से T2 माइनस करेंगे तो वो जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है, दैट इज 2 hour। 2 hour कम समय लगता था अगर इस शेड्यूल, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाता, तो दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब वो कह रहा है, सेकंड स्टेप है हमारा, इफ द स्पीड इज स्लो डाउन कर दिया, अगर आपने उसमें आप पहले स्पीड बढ़ाई थी और स्पीड को कम कर दिया, सो नाउ योर न्यू स्पीड इज x माइनस 10 किलोमीटर, डिस्टेंस विल बी सेम, दैट इज y किलोमीटर। नाउ विल बी द योर टाइम इज, that is your third time t3, so same formula that y by x minus 10। तो वो कह रहा है यही टाइम शेड्यूल टाइम से, अब ये टाइम ज़्यादा होगा, दैट मीन्स y माइनस एक्स t1, सॉरी ये टाइम ज़्यादा होगा, दैट इज t3 माइनस t1। अब टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज 3 hours, और t3 hour, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप ये चीज़ की फर्स्ट थी, ये आएगा या ये डिफरेंस होगा, जो बड़ा बनेगा वो आप पहले लिखोगे, दैट इज ग्रेटर। और यहाँ पर हमने इसको देखा कि अगर स्पीड कम कर दी तो ये टाइम ज़्यादा आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने t3 को पहले रखा है, t1 को बाद में। सो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो क्या बनेगी? y माइनस एक्स माइनस 10 माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आपको x और y फाइंड आउट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The student of a class are made to stand in a row। आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को एक रो में बैठने को कह दिया गया है। The 3 students are extra in a row। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं तो एक रो कम हो जाती है, और अगर इफ़ द 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर एक रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दिए जाए तो 2 रो फालतू एक्स्ट्रा बन जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। सपोज आपने, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपने इस तरह से बच्चे खड़े किए, क्लियर है? तो ये आपकी 2 रोज हैं, 1 रो एंड 2 रो, नंबर ऑफ रोज आपकी 2, और एक रो में 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स बिठा रखे हैं। तो आपके टोटल स्टूडेंट क्या बने? 5 × 2 10 स्टूडेंट।
सेम आपको अब नंबर ऑफ रोज नहीं पता, लेफ्ट की मैंने लेट द नंबर ऑफ रोज हैं आपकी x और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो y। और टोटल स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, एक रो में जितने भी बच्चे हैं अब एक रो में y स्टूडेंट है तो x रो में कितने होंगे, दैट इज x इंटू वाई, जैसे वहाँ हमने किया 5 इंटू 2 किया। अब वो कह रहा है कि अगर एक रो में से 3 बच्चे बढ़ा दिए जाएं, मतलब एक रो में बच्चे जो है पहले y थे अब बच्चे 3 बढ़ा दिए, ठीक है, दैट मीन्स इट बिकम y प्लस 3। तो आपकी रो कितनी कम हो गई, एक कम हो गई, जो पहले x थी वो x माइनस 1 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिर भी वही के वही होने चाहिए थे, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बनेंगे, वही x और y, जो कि पहले भी टोटल स्टूडेंट x y थे। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर 3 स्टूडेंट एक रो में कम कर दिए जाएं, इट मीन्स y माइनस 3 कर दिए जाएं, तो आपकी जो रोज हैं वो 2 बढ़ जाती हैं, दैट मीन्स x प्लस 2, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही आने चाहिए जितने कि पहले थे। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और आपको अपना x y फाइंड आउट करें। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द गिवन हियर दैट द एंगल 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल b एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल a प्लस b। और ये एक ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल का सम क्या होता है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस b 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अगर c के इक्वल है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज c बाय 2। आप इसको हटा दें तो यहाँ से ये c की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की वैल्यू दैट मीन्स बिकम c बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल c बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। योर एंगल c विल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर c की वैल्यू 120 डिग्री है और ये किसके इक्वल था, 3 टाइम्स ऑफ b के। ओके, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B। एंगल C इज 120 डिग्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B। सो एंगल B की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 40। आपके पास एंगल A है, एंगल C है, एंगल B है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल A भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल A तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 120 + 40 160, तो एंगल A की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। ओके, सो यू हैव टू ट्राई दिस 5 क्वेश्चन। Okay, question number 6 is already done by you, and try your question number 7 also. So exercise is completed almost here. As you know that question number 8 cyclic quadrilateral. What is the property of a cyclic quadrilateral? Sum of the opposite angle is equal to 180 degree. So add the angle A and angle C, that is equal to 180 degree, and the angle B plus D is equal to 180 degree. You have the 2 equation and solve these 2 equations. Okay, here your exercise 3.7 is completed. Thank you.